Hello students, welcome to all of you in the chemistry class. Today's our topic is colligative properties from the chapter solution. Okay, so first thing is, what are the colligative properties? So the definition of colligative property is those properties those properties which are depend only the colligative properties the properties which are depend only on the number of solute particles. Okay, so it is clear, it is depend only on the number of the solute particles. You all know that solution has two components, solute and solvent. Okay, तो ये properties only किस पर depend करेगी, solute particles के number पे. So those properties which are depend only on the number of solute particles, not on the nature of solute or composition, are called colligative properties. So इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द colligative प्रॉपर्टीज़. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, इवन उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है. दीज आर कॉल्ड colligative प्रॉपर्टीज़. ओके, सो कौन सी colligative प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में और हमको स्टडी करनी है? दीज आर फोर. फर्स्ट थिंग इज relative lowering of vapor pressure. Okay, you all know that what is the vapor pressure. Okay, so the topic is relative lowering of vapor pressure. Number two is elevation in boiling point. So boiling point है उसका elevation हो जाएगा. Okay, this is the property, this is the colligative property, because ये property depend करती है किस पे, number of solid particles पे. तो that's why it is a colligative property. Number three, depression in freezing point. Freezing point decrease हो जाएगा, it is the depression in freezing point. And number four is osmotic pressure. Okay, osmotic pressure and osmosis and reverse osmosis, ये सब इसके अंदर टॉपिक के अंदर आएगा. सो मेनली हमको फोर काइंड्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है. दैट इज द फन द फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, the relative lowering of vapor pressure, it is very important, it is very important. Okay, and very easy to get marks. Okay, और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं. सो बी केयरफुल एंड बी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक. ओके, सो नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो जैसा कि इसके नेम से हमको थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव मीन्स किसी न किसी रिलेट करेगा कंपेरेटिवली, और लोअरिंग मीन्स डिक्रीज होगा. क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. कैसे होता है, क्लियर करते हैं हम आपको. सो नाउ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल. अब नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मीनिंग जो वेपराइज नहीं होगा. ओके, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जो वेपर क्रिएट ही नहीं करेगा. सो दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल. सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट mixed into a solvent, okay, then vapor pressure of the solution is lower than the pure solvent. Okay, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज आपके पास जनरली वाटर है, तो वाटर में अभी कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया है, सो इट इज प्योर सॉल्वेंट. तो उसका जो भी वेपर प्रेशर है, सपोज वो x है. ओके, और उसमें आपने मिक्स कर दिया, सपोज ग्लूकोज मिक्स कर दिया. तो ग्लूकोज मिक्स करने के बाद क्या होगा? ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, तो क्या होगा? उसके मिक्स करने के बाद में वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. जितना उसका पहले था, क्या, उसका वेपर प्रेशर उसके कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द कंपेरेटिवली, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव lowering of vapor pressure. Okay, so this lowering in vapor pressure depends upon the concentration of solute and not on the nature of the solute particles. ये पहले भी क्लियर हो चुका है डेफिनेशन से. so that's why it is called relative lowering of vapor pressure. तो generally we can say when a non-volatile solute is mixed into a volatile solvent, then a solution forms, and the vapor pressure of the solution will be decreases as compared to the pure solvent. So this lowering in the vapor pressure is called relative lowering in vapor pressure. Okay, I think this thing is clear to all of you. So according to Raoult's law, जो राउल्ट्स ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ओके, सो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर, ओके, द वेपर प्रेशर of the solution of a non volatile solute means ऐसा solution जिसमें non volatile solute mix है. So the vapor pressure of the of the solution of a non volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Okay, simple है. when you mix a non volatile solute in the solution, in the solvent, तो सॉल्यूशन बनेगा. उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस तो कभी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? दैट द सॉल्वेंट. सो वी कैन से दैट अभी भी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज वहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का या सॉल्यूट के मोल का कोई वहाँ पर उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल. सो वी कैन से इफ
ए इज द सॉल्यूट एंड बी इज द सॉल्वेंट। ओके, ये क्लियर करना, कहीं बुक में बी को सॉल्यूट भी लिखा हुआ है, सो बी प्लीज डोंट confused। Okay, so it is clear that we are writing here a is the solute and b is the solvent, so we can write here ये ps जो लिखा हुआ है बेटा, ps क्या है, ये आपके प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अभी हमने कहा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ व्हाट इज, ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा xb, xb मींस b इज द सॉल्वेंट और x मींस मोल फ्रैक्शन, सो इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द b। सो वी कैन से PS is directly proportional to XB। XB क्या है यहाँ पर, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है, सो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करेगा, इसी पे करेगा। और ये कौन है, PS। PS मीन द जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका वेपर प्रेशर। ओके, सो नाउ we can say from the Raoult's law we can write here that PS इज इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से जो कांस्टेंट उस साइन को हटा करके इक्वल कर दिया, पी नॉट बी इज इक्वल टू सॉरी पी नॉट बी एक्स बी हो गया, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, ये हो गया। सो नाउ दैट पी एस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो वी कैन राइट हियर पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी वन माइनस एक्स है, बिकॉज हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका सम कितना होता है बेटा, एक्स ए इज इक्वल एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। सो वी कैन राइट हियर, मैं एक्स बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स ए भी तो लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स ए। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर दी वन माइनस एक्स ए। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाइड वन माइनस एक्स ए, तो पी एस यहाँ पर क्या है, ये पी एस है। ओके, सो कुछ अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पी नॉट एस नहीं है बेटा, ओनली पी एस है। ओके, क्या है ये, जो जनरली फॉर्म चलती आ रही है वही पी एस है ये। ठीक है, सो नाउ पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, पी नॉट बी वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, सो नाउ पी नॉट बी एक्स है, पी नॉट बी एक्स है इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और सपोज इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, सिंपल है। ओके, सो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस। नाउ यहाँ से हम एक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, पी नॉट बी को यहाँ भेज दो नीचे इसके। ओके, सो ये पी नॉट बी इस साइड आ जाएगा, तो दैट इज द एक्स ए, यहाँ से हम एक्स ए फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर हो गया, दैट इज द एक्स ए। एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे एक्स आया। अब एक्स ए क्या है एक्चुअल में, ए जो है बेटा बेटा योर सोल्यूट, एक्स ए इज द सोल्यूट, सॉरी ए इज द सोल्यूट एंड एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। अच्छा, पी नॉट बी माइनस पी एस क्या है, पी नॉट बी आपको पता होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये पी नॉट बी इज हायर देन पी एस, ये भी हम जानते हैं, पी नॉट बी is higher than PS because solution का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, so that's why it is called relative lowering of vapor pressure। so हम यहाँ से इसको लिखेंगे, ये आफ्टर ये क्या पे चेंजेस है वेपर प्रेशर में, so we can write it डेल्टा पी, चेंज इन द वेपर प्रेशर। सो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी। ओके, सबको क्लियर है यहाँ से, ये कैसे लिखा हमने, पी नॉट बी माइनस पी एस को डेल्टा पी लिख दिया, सो इट इज़ क्लियर। अब यहाँ समझना आपको कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी एक्चुअल में है लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी जो है वो वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ ये शो कर रहा है, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी क्या है, अब यहाँ पर आप कंपेरिजन चेक कर सकते हो कितना कम हुआ, सो दैट इज दी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लेवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कितना लोअर होगा वेपर प्रेशर ये डिपेंड करेगा दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जितना आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यूज करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ओके आप ऑलरेडी जानते हो, एक्स ए लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन मींस उसका मोल, सपोज ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स क्या होता है, सपोज देयर आर टू कंपोनेंट्स, तो वी कैन राइट एन ए प्लस एन बी, बस यही तो लिखेंगे हम एक्स ए को। तो हमने यहाँ पर इसी को लिख दिया है, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है सबको, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, दैट इज एक्स ए इज वॉट, एक्स ए यहाँ से वैल्यू देखिए आप ऊपर से,
this value. Okay, x is equal to delta p upon p naught b means पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी भी लिख सकते हैं इसको. सो इट इज द एक्स है, ये एक्स है को हमने लिख दिया पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और ये हो गया आपका एन ए अपॉन एन ए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. ओके, फोर. नाउ अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में मीन्स क्या हो गया, सॉल्वेंट जो है बेटा आपका जो बी पार्ट है, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट मीन सॉल्वेंट, ये बहुत हाई होता है फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ए जो है, ए व्हाट इज द सॉल्यूट, वो बहुत ही लेस होता है इसके कंपैरिजन में. इतना कम है अगर डाइल्यूट के लिए तो हम इसको नेग्लिजिबल मान ले, तो ए कुछ वैल्यू नहीं रहेगी हमारे साथ. ओके, सो नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन ए Na is very very less than Nb. The moles of A means moles of solute is very very less than moles of the solvent. So Na may be neglected. Okay, तो इसको negligible मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb को हम कह रहे हैं अप्रोक्स Nb हो रहा है, ये मीन्स हम Na को हटा रहे हैं. ओके, यहाँ पर ओनली हम Nb यूज करेंगे. सो दैट्स वाई वी कैन राइट P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी. ये तो एज इट इज है. ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ Na नहीं लिखा ओनली, तो Na अपॉन Nb हो गया. क्लियर है सबको यहाँ से. सो Na इज वॉट, अब आप देखो मोल कैसे फाइंड आउट करते हो. Na इज वॉट, Na इज द मोल ऑफ द A, एंड वी हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोल, we can find out the mole by this formula that N is equal to given mass upon molar mass, given mass upon molar mass. अब यहाँ पर Na लिखा हुआ है, so we can represent it Wa and the Ma. क्लियर है सबको, Wa upon Ma. so how, यहाँ पर हम लिखेंगे Na को Wa upon Ma, और इसको लिखेंगे Nb को Wb अपॉन Mb. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ, द फॉर्मूला इज P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू Wa अपॉन Ma इंटू Mb अपॉन Wb. ये हो गया आपका Na अपॉन Nb को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कभी कभी आपको ए जो है, जो आपका सॉल्यूट है, उसका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं, एम ए फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं, डब्ल्यू ए फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं. सो नो इशू, वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट बाय दिस फॉर्मूला. सो सपोज हम एम ए फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म दैट एम ए इज इक्वल टू, बाकी सेम है, डब्ल्यू ए एम बी, तो डब्ल्यू ए एम बी अपॉन डब्ल्यू बी. ओके, इनटू, अच्छा यहाँ से पी नॉट बी माइनस पी एस, पी नॉट बी इस साइड ट्रांसफर होगा, सो पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस. तो दिट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दी मोलर मास ऑफ दिस सोल्यूट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करना है और यहाँ से एम ए फाइंड आउट करना है. अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम यहाँ पे. ओके, सो आई होप दिस फॉर्मूला एंड दिस रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, you can repeat it. Okay, so now the next thing is the question, the vapor pressure of solvent B, एक solvent है आपके पास B is 0.80 atm, उसका vapor pressure है. when a non volatile solute A is dissolved in it, the vapor pressure is 0.6 atm. calculate the, okay, तो पहले कितना था 0.80 atm, atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी कितना हो गया 0.6 मीन्स डिक्रीज हो रहा है. सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन. सो बहुत ईजी है, हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल राइट द गिवन. तो पी नॉट बी इज व्हाट, पी नॉट बी मीन्स द pressure of the solvent, it is 0.80 atm, and the ps is what, the pressure of the solution, how much the pressure right now, so it is 0.60 atm. so x is what, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स ए है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द of A in the solution. Okay, so now we can write the P naught B minus PS, sorry, it is not P not S, it is only यहाँ पर PS है only, upon P naught B is equal to X A, ये X A find out करना है. so clearly from the formula we can write it. Okay, now 0.80 is the pressure of the pure solvent. now minus 0.60 upon 0.80 is equal to XA, तो XA is equal to what, 0.20 upon 0.80, it is the 0.25. okay, so it is the 0.25, इसकी कोई मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, so it is 0.25 the answer. it is very simple question. okay, basic question to understand the topic. So the second question is, the vapor pressure of H2O at 65 degrees centigrade is 92.0 mm of Hg on dissolving 18.2 gram non-volatile solute in 100 gram of H2O. the vapor pressure is lowered to 87.00 mm of Hg. ये क्लियर है आपको, 92 से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया, 87. पहले सॉल्वेंट था दैट इज 92, अभी सॉल्यूशन हो गया और तो 87 उसका डिक्रीज होकर हो गया. देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको एम ए फाइंड आउट करना है इन दिस केस। ओके, सो नाउ गिवन, जो भी गिवन है वो लिख देंगे। गिवन इज व्हाट, डब्ल्यू ए 18.2 ग्राम, डब्ल्यू बी 100 ग्राम, डब्ल्यू बी 100 ग्राम वाटर का है। देन एम बी इज 18 ग्राम, 18 ग्राम क्योंकि वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है, H2O, H2O इज 2 + 16 इज इक्वल टू 18। सो एम ए फाइंड आउट करना है। पी नॉट बी इज व्हाट, पी नॉट बी इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो स्टार्टिंग में 92 था, दैट मीन्स 92, and the PS is the pressure of the solution, it is 87. So now we can write the formula, P naught B minus PS upon P naught B is equal to WA into MB upon MA into WB। तो यहाँ से हम सीधा MA फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से फॉर्मूला लिख दो आप, MA इज इक्वल टू WA इंटू MB अपॉन WB। बस MA को ऊपर ट्रांसफर कर दिया और P नॉट B अपॉन P नॉट B माइनस PS को इधर ट्रांसफर कर दिया। सो दैट्स WA इज व्हाट 18.2, 18.2, MB is 18 upon WB is what 100 multiplied by 92, 92 upon 5, 5 कैसे आया, 5 is 92 minus 87, ठीक है। सो नाउ 182, इसको सॉल्व करेंगे। 182 डेसिमल 182 इंटू 18 इंटू 92 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10। ओके, डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 आ गया, कोई इशू नहीं। उसके बाद सॉल्व करोगे तो दैट मीन्स द आंसर इज 60.27 ग्राम पर मोल। इट इज द आंसर, इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इतना सॉल्यूट डिजोल्व किया था तब जाकर के 92 से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ 87। ओके, हम क्वेश्चन को ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर, सॉरी, द पॉइंट नंबर 2, द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको स्पेलिंग क्लियर हो जाएगा। दैट इज द एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ELEVATION। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम समझते हैं स्टार्टिंग में। एटलीस्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता है क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज अ टेम्परेचर, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, क्या होता है कोई भी लिक्विड को आप बॉईल करते हो, दैट मीन्स वहाँ पर वो वोलेटाइल है, मीन्स वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वेपर क्रिएट करेगा। और उसके बाहर सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं दैट टाइम लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, सो इट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। सो द बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling, or we can say it is the point of temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to what, it is equal to atmospheric pressure। दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसको हम समझते हैं क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है वो भी हम समझेंगे। ओके, सो दैट मीन्स व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन ए लिक्विड, तो माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना, क्या कर रहे हैं हम, देयर इज अ प्योर सॉल्वेंट और उसमें मिक्स करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Okay, or we all know that when we mix a non-volatile solute in a pure solvent, the vapor pressure decreases। Okay, और boiling point क्या होता है, boiling point is the temperature at which the VP, vapor pressure of liquid, is equal to atmospheric pressure। okay, मैं आपको समझा देता हूँ अभी यहाँ से। so suppose आपने क्या किया, हमने वहाँ पर एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने पे इसको आपको इक्वल करेंगे ना, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस टाइम पे क्या होगा, बॉईल होगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, इट मीन्स आपको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल लाना है। दैट मीन्स आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो नाउ listen word carefully and also read the lines very carefully। when a non-volatile solute is dissolved in a liquid, okay, in a liquid, the vapor pressure of the solution is lowered, means decreases at a high temperature is now required to make vapor pressure of the solution equal to the atmospheric pressure, otherwise वो boil नहीं होगा। so the boiling point of the solution increases, this boiling, the boiling of the solution is more than the pure solvent। ये तो क्लियर है आपको, प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था। ओके, हमने उसमें मिक्स किया, दैट इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड दैट टाइम वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। so that's why there is a need of high temperature to increase the vapor pressure, and that's why the temperature rises, the boiling point rises। okay, this increase in boiling point is called elevation in boiling point। क्लियर है सबको, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था।
दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी। ओके, तो डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ हम समझ लेते हैं एक बार, लिसन। यहाँ पर ग्राफ बेटा किसके बीच में है? दिस ग्राफ इज बिटवीन द टेम्परेचर, ओके, द वेपर प्रेशर, ओके, द टेम्परेचर एंड द वेपर प्रेशर। ये डेल्टा टी बी नोट क्या है? नोट जहाँ भी यूज़ करूँगा दैट मीन्स द प्योर सॉल्वेंट। तो ये वो टेम्परेचर जहाँ पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था, दैट मीन्स द डेल्टा सॉरी टी बी नोट मीन्स द टेम्परेचर एट विच द प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स एंड द टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर एक ग्राफ है, ये आपके सॉल्वेंट के लिए, सपोज यहाँ पर सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था और ये सॉल्यूशन के लिए है जब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। दोनों ग्राफ्स, दोनों लाइंस जो हैं, दोनों कर्व्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ओके, द सेकंड थिंग इज सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो अपर साइड में है, किससे? सॉल्यूशन से। इट मीन्स ऑन द सेम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप सेम रखोगे, सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट जो है हाई टेम्परेचर पर, दोनों सिमिलर हैं बेटा यहाँ पर, और हम इसको समझेंगे ऐसे। दैट मीन्स ये अपर साइड में है सॉल्वेंट वाला, लिसन, ये अपर साइड में है और ये डाउन साइड में है। ओके, सो ये डेल्टा टी बी क्या चीज़ है यहाँ पर? ओके, इसको क्लियर करते हैं। ये सपोज यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, इस टेम्परेचर पे आपका बॉईल होना स्टार्ट हो गया था, इस टेम्परेचर। बट व्हेन यू मिक्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, ओके, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनते ही अब ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो रहे हैं, मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी, यहाँ पर इस टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसने इक्वल हो गया उसके, मीन्स ओके, इतना वेपर प्रेशर एक्वायर कर लिया। सो दैट इज, ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solvent and this is the boiling point of the solution, which is higher, it is higher। ओके, ये इस स्केल पे हाई वैल्यू पे है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट ये इनके बीच का जो गैप है, इट इज़ अ डेल्टा टी बी, मीन्स कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज द डेल्टा टी बी। सो वी कैन राइट हियर वी नो दैट द टी बी इज ग्रेटर देन द टी बी नॉट, सो we can write the boiling point of solution is delta t, sorry, tb, and the solvent is TB naught। Okay, so we can write elevation in boiling point is delta TB is equal to TB minus TB naught। क्लियर है सबको? यही इंक्रीज हुआ है और यही है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर स्मॉल m से। ओके, और डेल्टा TB है आपका जो भी इंक्रीज हो रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली हम यहाँ से फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास डेल्टा टी बी इंटू एम। अच्छा, एम को हम यहाँ पर क्या करेंगे? दैट इज़ द जो प्रोपोर्शनल है उस साइन को हटाएंगे, द डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। के बी इज वॉट? के बी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एम इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। एंड व्हाट इज एम, व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोल्स कैसे? डब्ल्यू अपॉन एम ए इज द मोल, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज द मोल, अपॉन डब्ल्यू बी द मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड द 1000 किस लिए लिखा? अगर ग्राम में मास प्रेजेंट है सॉल्वेंट का, तो अदरवाइज नहीं। ओके, तो हैंस डेल्टा टी बी यहाँ से हम क्या बना सकते हैं? डेल्टा टी बी क्या बन सकता है? इज डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 इंटू के बी। ओके, ये यहाँ पर के बी इस फॉर्म से आ गया, डेल्टा टी बी, तो पूरा एम लिख के बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ के बी इज डिपेंड ऑन, अच्छा ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एम ए फाइंड आउट कर सकते हैं। एम ए को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, डेल्टा टी बी यहाँ ट्रांसफर हो गया। सो दैट मीन्स एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए into 1000 into kb into delta tb into wb। It is very very important, and it is directly you can use directly this formula into the numerical। Okay, so value of kb is what? Value of kb is depend on the nature of the solvent। Okay, कभी वन लाइनर में क्वेश्चन भी आ सकता है, it is very important। So kb is equal to what? How can we find out the kb? mb rtb square upon 1000 into enthalpy of vaporization। So r is what? R is the gas constant। What is delta vaporization of the vaporization of enthalpy? It is the molar enthalpy of vaporization। Okay, and delta tb is determined by Lindbergh's मेथड। ओके, ये एक मेथड है जिसके थ्रू डेल्टा टी बी को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज
द 4.18 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। ओके, फर्स्ट थिंग मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से ये फॉर्मूला आप सबको मेंशन कर लेना, इसको नोट कर लेना अलग से। दैट इज द एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। कैसा है, डेरिवेशन बताई दी मैंने आपको। ओके, सो नाउ इट इज़ वेरी इजी, इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो 4.18 ग्राम of a compound is dissolved in 240 gram water. The boiling point of this solution is 100.065 degree centigrade at 1 atm pressure. Calculate the molecular weight of a compound, यानी कि आपको Ma find out करना है, Kb given है 0.53 for 1000 gram of water. So how can you find out the Ma? Ma find out Ma is equal to 1000 into Kb into Wa delta Tb into Wb. डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कहा था यूज़ कर सकते हैं, you can use. So Kb is what, 0.53, Wa is what, 4.18 gram, and Wb is what, 240 gram, and delta Tb is equal to 100.065. उसमें से माइनस करेंगे 100 को, बिकॉज ये डेल्टा टी बी है तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। सो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अभी क्या है, 100.065 से 100 हुआ, से इट मीन्स सॉरी, डेल्टा टी बी इज 100.065 माइनस 100, इट मीन्स जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो एक प्योर सॉल्वेंट था आपके पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100, और अभी कितना हो गया, अभी हो गया सॉल्यूशन का 100.065। तो दैट मीन्स व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इंक्रीमेंट, दैट इज द 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट इज एम ए, अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हम, आप कैलकुलेशन देख सकते हो। बाय दिस कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द आंसर 142.012। ओके, इट इज द एम ए, तो ग्राम। Okay, so it is the answer. Now question number next, it is on dissolving 1.17 gram cane sugar is 25 gram water in 25 gram water, the boiling point rises by 0.071 degree centigrade. इतना boiling point increase हो गया। So calculate the molar elevation constant of the solvent. अब यहाँ पर आपको Kb find out करना है, so easily है, delta Tb is equal to 1000 Kb dot Wa अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, द डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन यूज़। तो के बी यहाँ से हम निकालेंगे, दैट इज डेल्टा टी बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ओके, एंड 1000 इंटू डब्ल्यू ए। सो फ्रॉम दिस calculation we can put the values in this formula, and by this calculation we can find out the answer. It is 0.518. okay, you can calculate also and you can find out the answer. So it is 0.518 kb, and kb it is what, kb is the ebullioscopic constant. So now the next question is 18 gram glucose has been dissolved in 1 kg water in a pan. At what temperature will this boil at 1.013 bar यानी 1 atm pressure? kb for water is 0.52 k kelvin kg mole inverse. तो 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिजोल्व किया 1 kg ऑफ वाटर में, और एट what टेम्परेचर विल दिस वाटर बॉयल। अब ये फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये वाटर बॉयल होगा। प्रेशर है 1.013 बार। ओके, सो नाउ गिवन क्या क्या है, डब्ल्यू ए 18 ग्राम, डब्ल्यू बी 1000 ग्राम, एम ए 180 ग्राम, के बी 0.52, एंड डेल्टा टी बी फाइंड आउट कर लो। मीन्स टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, उसको फिर 100 में प्लस कर दो, सिंपल है ना। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें अभी जो सॉल्यूशन बना है वो कितना टेम्परेचर चेंज होगा, दैट उसको प्लस करना है। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर है सबको। नाउ यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.052 केल्विन। मीन इतना टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। ओके, पहले कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, केल्विन में आया तो 373 केल्विन था ऑलरेडी, 373.15, उसमें प्लस कर दो आप कितना, 0.052। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। ओके, सो हमने यहाँ पर कर लिया है। बॉइलिंग पॉइंट, द सॉल्यूशन इज 373.15 और 0.052, तो इसको हम करेंगे तो दैट इज 373.202 Kelvin. It is the answer. Okay, students. So these are the two colligative properties. Okay, I have explained to you, and I hope ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, और इसके बाद हम अगली जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।